sir is here. What do you do? I am part of the team. Handling the whole event. And who's the lady who's your... Priyanka. 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 ऊपर जाने का अरे इनको आने जाने Right. Hurry. Yes, I'm I've been doing work quietly and made good pictures. and made some good ones. Yeah. जाओ भाई पीछे Sandeep is the writer of Shershah. How lovely is that? He's written some great films, Ab Tak Chappan, New York. All beautiful. So we are going to take a selfie. Yeah. पीछे आ जाओ भाई सब लोग Biopic also. I'm good. How are you? यहाँ ना पहुँचे कहीं वहाँ पहुँचे लगे कैमरा a mighty round of applause, ladies and gentlemen. Hello. Ladies, Come on, मेरी एनर्जी आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती. You are so many in number. Come on, ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. As you can see, our monster right now. As you can see, the smiles being exchanged. This is that moment we've been waiting for. Let's celebrate these dignitaries who have contributed so much to the Indian cinema. Let's give them a huge round of applause. ये बहुत ही एक massive moment here where we're getting to interact with them. No. There's a flag on Are the seniors? Yeah, I'm looking at the seniors. I'm trying to follow them. Please. आप बैकग्राउंड में ले लीजिए ना And Mr. Ravindra Bhakar, the MD of the National Development Corporation, CEO, Central Board of Certification and Director, General Conservation. Come on, let's give a huge round of applause. What a fabulous moment right there. अब मैं चाहूँगी आपकी तालियाँ और भी इस celebration में contribute करें. Let's give them a mighty round of applause. राकेश और प्रकाश में तो जगह बना ना Dada. I love this song. Ladies and gentlemen, Mr. Rakesh Prakash, thank you so much for your पहले आप Divya Datta ji, Jackie Strawberry. Let's give them a huge round of applause.
पीछे आ जाओ भाई, पीछे थोड़ा आ जाओ, फुल मिलेगा। अच्छा अभी समझ में आ रहा है, पहले मुंह पे चले गए, अब बोल रहे पीछे आओ। The people who have evolved and enhanced the Indian cinema, the created यहाँ सब लोग प्लीज एक बार देख लीजिए। The members of the press trying to get every light as possible, every angle, every picture, and creating this as a memorable day for all of us. Hey all of you. अरे तेरे को आ रहा है, घुमा कितना टाइम। And whilst as our press celebrates this wonderful moment, ladies and gentlemen, मैं चाहूँगी आप फिर से एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। All our wonderful dignitaries out here. Sandeep ji and Sandeep ji from the team of Shesha. Of course, Mr. Shabir and Mr. Sandeep ji, thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. इन्होंने इतना अच्छा अभी तक काम किया है, amazing pieces of work. Let's give them a huge round of applause. Come on, ladies and gentlemen. Iconic work. मैं सबको अपना नमन जाहिर करते हुए चाहूँगी कि you guys all please be seated. Thank you once again for joining us. Shabi, keep doing Come on, ladies and gentlemen, a huge round once again. दादा प्लीज प्लीज। Well, good morning, ladies and gentlemen. Namaste, Kamnae. मेरा नाम है भावना भाटिया, and a very warm and vibrant welcome to all our distinguished guests, our friends from the media, and all of you who've taken out your valuable time and gathered for the celebration of 75 years of India's independence. Wow, what a great moment this is. Well, the National Museum of Indian Cinema Films Division and the National Film Archives of India join Azadi Ka Amrit Mahotsav with today's event to commemorate the 75th Independence Day. Well, I extend gratitude to our esteemed guests for today, master filmmaker Ms. Divya Datta ji, thank you so much for joining us. Film producer Mr. Shabir Boxwala, screenwriter Mr. Sandeep Srivastava, and Mr. Ravinder Vakar, MD, National Film Development Corporation, CEO, Central Board of Film Certification, and Director, General Films Division. Of course, how can we leave out our favorite, Mr. Jackie Shroff ji? Thank you so much, sir, for joining us. An extreme honor to have you today. आप सभी को आज़ादी का अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ladies and gentlemen. Well, the National Museum of Indian Cinema is the only cinema museum in the country that chronicles 100 glorious years of Indian cinema. Let's give them a huge round of applause. What a wonderful initiative this is, through its highly digitized and interactive displays and exhibits. Well, let me tell you, the museum was inaugurated by none other than our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in 2019, and is an experience unmatched for cinema lovers, filmmakers, academic museum to life, and also continues to create the kind of video content that we all grew up with. So a lot of nostalgia will come across when you experience this wonderful museum. The National Film Archives, the official custodian of the rich cinema of India, takes the opportunity of restoring and preserving the films that our future generations can watch. Well, ladies and gentlemen, with this, I would now request Mr. Ravinder Vakar and all our guests of honor to join us and help us in hoisting the flag. Ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause as we request them. इसका देखिए वो पड़ेगा मिल रहा है ना। इतना छोटा वीडियो बनाना ताकि तुम भेज सको झंडा लगाने। They are there right now for the flag hoisting, ladies and gentlemen. Let's help them in the hoisting at the count of 5, 4. Everyone, come on, let the flag continue. 75
Let the flag fall, and that's what it is. Come on, ladies and gentlemen, a salute right there. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! I'm sure each and every one of you is filled with pride. This is our motherland, our country, India. We're celebrating 75 years of independence, an incredible moment while we're joined by dignitaries who've shaped Indian cinema at this wonderful place. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। और हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर आज हर देशवासी गौरवान्वित है। जिस तरीके का प्रतिसाद आज देश की हर गलियों में, हर घर में, हर घर तिरंगा का जो लोगों ने एक तरीके से अपना योगदान दिया है इस आयोजन को सफल बनाने में, इस तरीके से देश प्रेम की भावना से पूरा देश ओतप्रोत है, तो वास्तव में काबिल तारीफ है और हम सबको ये चीज़ बेहद गौरवान्वित करती है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज मैं सभी हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। देश के हर नागरिक जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई, मैं उनको भी अपना सच्चा नमस्कार करता हूँ। आज हम सब लोग जानते हैं हमारा देश भारत जो है एक विश्व की जानी मानी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसको कभी लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में जानते थे। आज हर कोई इस देश की तरफ देखता है। हाल ही में जो कोरोना महामारी थी, किस तरीके से हमने अपने देश को संभाला। हमारे देश में निर्मित वैक्सीन 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दी जा चुकी है। न केवल हमने अपने आप को संभाला, बल्कि विश्व जो हमारी तरफ देख रहा था, हमने उनको भी मदद का हाथ बढ़ाया और हर संभव मदद उनको दी। ये हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हों उसमें पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो निश्चित रूप से हम देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आज देश का युवा, आज देश का किसान, देश की महिलाएं अपने हर क्षेत्र में कड़ी से कड़ी बाधाओं को पार करते हुए एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में देश के खिलाड़ियों ने भी जिस तरीके से देश को गौरवान्वित किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। कला और सिनेमा जो है, इसको गति देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने इसको एक प्राथमिकता की सूची में रखा है। और निश्चित तौर से कई योजनाएं इस क्षेत्र में लाई जा रही हैं जिससे देश का युवा जो है इस तरफ आकर्षित हो सके। और आज आईटी क्षेत्र के बाद में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ऐसा क्षेत्र है जहां अपार रोजगार की संभावना है। देश में बहुत तरीके की योजना बन रही हैं ताकि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जा सके, युवाओं को इस तरफ आकर्षित किया जा सके। इसी कड़ी में एक
पिछली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था, उसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। इसमें देश की जो 75 प्रतिभाएं हैं उनको निकाल के उनको कैसे हम नर्चर कर सकें, उनको कैसे हम एक आइकॉन्स ऑफ सिनेमा बना सकें। इस बार भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हम हाल ही में 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे और सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत है कि इन क्रिएटिव माइंड्स को हम कैसे आगे से ले जा सकें, कैसे उनको उस तरीके का अवसर प्रदान कर सकें ताकि देश के सिनेमा को और गौरवशाली बनाने में ये लोग अपना योगदान दे सकें। अंत में इस पावन अवसर पर मैं आप और आप सबके परिवारजनों को देश के 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Mr. Ravindra Bhakarji, for joining us and inspiring. Azadi Ke Rang, a bouquet of 18 unique films by the Film Division on the freedom struggle and important historic moments to mark India at 75. With this, we just request our guests to follow, please coming together for a lovely photograph to get this memory in place. Ladies and gentlemen, let the claps continue. Thank you so much. First, we just request our guests of honor to head towards the auditorium. We just request you to please be seated for the time being. Let them have the liberty and access to head at their peaceful time. Once they have been seated, we request our members of press also to shortly join us. But just allow us a moment to just be seated for the timing. I'll let you know once you can step in towards the auditorium. Thank you. Members of the press, you can now proceed towards auditorium number 1. You can now proceed at the timing once we have our guests in place. आप
Thank you so much, Mr. Subhash Kaiji. Well, ladies and gentlemen, it's our honor to welcome Mr. Rakesh Om Prakash Mehra ji, the master craftsman behind the films like Bhaag Milkha Bhaag, Tufan, Delhi 6, and many more. He's had the unique ability to make films that churn the minds and hearts of today's youth and create an impact that even the younger filmmakers would struggle to create. Come on, let's give him a huge round of applause and let the standing ovations continue, ladies and gentlemen. These are our veterans, somebody who have defined our Indian cinema. We look up to all of them. Next one, of course, our charming Miss Divya Datta ji, with films like Bhaag Milkha Bhaag, Delhi 6, Stanley Ka Dabba. Let's give her a huge, huge round of applause and many more to her credit. She's looking absolutely spectacular and resonating with her positive personality. Let's give her a huge, huge round of applause. Of course, popularly known as Jagu Dada. Yes, Mr. Jackie Shroff, who absolutely needs no introduction, but somebody who has created unparalleled work across his volume of the years he's been in the Indian cinema. Somebody whom every actor in the industry looks forward to meeting, interacting, and all the members of the press. Somebody who's loved, and you can see how we all clap for him, and I think that's what shows the kind of work he's done. Of course, Mr. Shabir Boxwala, who's the co-producer of Shershah, Gupt, Mohra, and many more. Let's give him a huge round of applause. Thank you, Mr. Boxwala, for joining us. It's an absolute honor to have you today with us. Come on, ladies and gentlemen, let the applause continue. And of course, Mr. Sandeep Srivastava, the highly acclaimed screenwriter, lyricist and actor, widely known for his film New York, and he also wrote the screenplay for the film Shershah. Let's give him a huge, huge round of applause. Thank you, Mr. Srivastava, for joining us on this grand occasion. With this, I'd request all our dignitaries to please be seated, and of course, our members of press, thank you so much. Thank you for the acknowledgement. Well, ladies and gentlemen, we usually look at cinema as a medium of entertainment, if you all would agree. But in reality, cinema is not only, it's not just what it gives the slice of our lives, but also the force that drives how we live our lives. If you may agree, we all, to some extent, are driven by what we see, and that is our cinema. Films that we watch, invoke all kinds of emotion in us. And of course, patriotism and the love for the motherland is one of the strongest of them all. Our eyes swell up, our hearts melt, and our chests soar with pride. But what does it take for a filmmaker to create this sentiment of patriotism on screen and make the audience connect with it? To this and much more conversations, I'm going to take the liberty of asking our distinguished guests certain questions which will help us to understand their perspective a little better. Are you all up for it? A big yes? Yes. Let's go ahead. So, ladies and gentlemen, of course, we'd like to start by asking the question to none other than Subhash Kaiji. Sir, वो एक क्या चीज़ है जो फिल्म देखने वालों में देशभक्ति का ज़लज़ला उठा देती है? If you can let us know, of course, Karma, such a fabulous film it's been. We'd just like to know, how does a film invoke the sentiment of patriotism? First of all, good morning, and thank you very much for inviting us and for this honor. Thank you, Ms. Martha. किसकी लाइट बंद चालू हो रही है? You see, cinema has that magic which can connect to the audience, all its soul, heart, mind, thoughts, feeling. But it can evoke audience only when it touches you as a filmmaker. लिखने वाला जो राइटर है, पहले उसे देशभक्ति के बारे में फील करना चाहिए, फील होना चाहिए. फिर डायरेक्टर को उसके बारे में उतना ही महसूस होना चाहिए. जब जितना वो महसूस स्क्रीन
फिल्म बनाते हुए करेगा उतना ही महसूस ऑडियंस फील करे। अगर मैंने ही आर्टिफिशियल तरीके से उसको ज्योमेट्री समझ के या मैथमेटिक्स समझ के या एक सुपर हिट बॉक्स ऑफिस समझ के किया कि पेट्रियटिज्म दिखता है, तो ऐसा नहीं होता है। You have to feel it from your own soul, within your own mind, and love for your country and feel for your nation. ये स्वभाव में होता है आपके, या होता है या नहीं होता है, उसको आप इनकैश करने के लिए नहीं करते। मुझे याद है कि जब कर्मा की फिल्में बना रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो इट वॉज एन बेसिक प्लॉट ये था कि एक जेलर जो है 3 क्रिमिनल्स को लेके एक मिशन पे जाता है, एक विलन को पकड़ता है, उनको प्लान करता है, इसी प्लांटिंग ए क्रिमिनल अगेंस्ट ए क्रिमिनल। इट्स अ वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लॉट। सो व्हेन आई वाज राइटिंग इट, देन आई थॉट कि आई हैड रिटन ए कैरेक्टर ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार that who is a very patriotic person by himself, and his wife writes a song, हर कर्म अपना करेंगे वतन के लिए, and is very inspired by his wife's thought, and he is a person who loves his prisoners, who takes care of his prisoners, he does his duty, and when he looks at his flag, his eyes glitter, genuine feelings. So when I was in the process of writing the script, then I thought that when he employs these 3 criminals who are now going to be hanged, so it was Mr. Dilip Kumar's characters who brought them and infused his feeling into them, and that is how the whole picture became on a different platform. That these 3 criminals who are hardcore criminal, who could never think of their country or India, in the end they start shedding their tears for their country, and they become more patriotic than a normal person over there, because they realize the way his motivator, his mentor, Mr. Dilip Kumar, his teacher, is so genuine that where are we going? So it is always the leader who infuse this kind of school of thought or feeling for your country, for your family, or for anything there. So करते 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 वो फिल्म जो है वो एक पेट्रियोटिक रूप लेने लग गई, because the characters I had written, and I remember that I went to Lakshmikant Perilal, and basically normally I write in my script, जो गाने का मुखड़ा होता है वो मैं लिख देता हूँ साथ में, फिर उसके बाद आनंद बख्शी जी कभी चेंज करते थे, कभी नहीं करते थे ऐसा। तो मुझे याद है कि मैं इसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के आया, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी के वहाँ गया म्यूजिक रूम में, तो किसी और की सेटिंग चल रही थी, इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल स्टोरीज। तो किसी और की सेटिंग चल रही थी, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, मुझे वापस चला जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी सेटिंग को थोड़ा ब्रेक दिया और मुझे बुलाया। तो मैंने कहा कि सर मैं भी स्क्रिप्ट लिख के आया हूँ, लेकिन एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप इसको लिख लीजिए और कभी मूड आएगा तो आप इसकी ट्यून बनाइएगा। और मैंने वो लाइन लिख के दी उनको, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये मैं आपको अभी सच्ची बात बताता हूँ। और कह के मैं चला आया बाहर आके एक प्रोड्यूसर था, मैं उससे बात करने लगा। 5 मिनट के बाद फिर मुझे एक फ़ोन आया, निश्चय कॉल आया, लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, अपने बाजे पे बैठे थे, बोले सुभाष जी सुनिए, मैंने आपकी लाइन पढ़ी है, मैं इससे बहुत प्रेरित हुआ, इट्स ए ब्यूटीफुल लाइन, जस्ट लिसन। और उन्होंने गाना शुरू किया, हर कर्म अपना करेंगे। अब आप सोचिए वो गाना उधर बन गया, क्योंकि कोई टेक्निक नहीं थी, एक फील था, मैंने लिखा, एक फील था मैंने उनको दिया, एक फील है उनने बाजे पे हाथ रखा, एक फील है आनंद बख्शी साहब ने लिखा, एक फील था एक्टर्स ने गाया। और वो जो फील है जेन्युइन फील, वो ट्रेवल होते होते सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के द्वारा पहुँचते पहुँचते वो फिल्म ने अपना ही एक रूप ले लिया, और उसका थीम पीस भी वो ही बन गया। और मुझे आज खुशी है कि जब आप ठीक सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं तो ऑडियंस तक पहुँचती है, और वो गीत हो या फिल्म हो, वो लोगों को बरसों याद रहती है, जैसे आज भी आपको याद है।
तो आई थिंक ये जो फिल्म मेकर्स हैं हम लोग, जब तक हम सिंसियरली नहीं उस चीज़ में बिलीव करते हैं और सोचते हैं, उस फीलिंग को वो ऑडियंस में नहीं पहुंच पाती। अगर हम सोचते हैं तो पहुंच पाएंगे। क्या मैंने अपने सीन में या गाने में आंसू बहाए शॉट लेते हुए, शूटिंग करते हुए, लिखते हुए? तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। नहीं बहाए हैं और बॉक्स ऑफिस सोचा है तो बॉक्स ऑफिस में कुछ मिल सकता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा, दिल नहीं जीत सकता लोगों का। तो दिल से दिल का एक नाता होता है जो फिल्म मेकर को ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much, sir. Anecdotes of wisdom out there. As Mr. Subhash Ghai ji was talking so fondly about the movie Karma, I'd like to ask the question to Jagu Dada. Jagu Dada ji, starring in that wonderful and iconic film, years have passed, but whenever someone watches that film, it still stirs the emotions right there, and the cinema has evolved over the years. We just like to know, when you were shooting that film, any particular incident you'd like to highlight, and how has the journey been so far from that film, because that was, I believe, one of your initial in the career, one of the iconic films, and how was it to be starred in it, and your expression of gratitude and how you felt, Jagu Dada, from that film to now? स्टेज पर, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम। दिव्या जी, बॉस सर, बाकी बड़ों, आप लोग इतने सवाल हैं, बोलने को ज़्यादा आता नहीं, लिख के देंगे तो बोलूँगा। दिल में सारी बातें हैं, सिंसियरिटी लेवल अपना बराबर है, संभालने वाला अगर कोई मिल गया तो बहुत होता है। एक पत्थर को उठा के सितारा बना दिया इन्होंने, जो मैं ये साउथ बॉम्बे में रहता था, वो हकीकत है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और शोमैन बोलते हैं तो वाकई है, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई हैं जो हम भी देखते थे, कालीचरण से लेकर विश्वनाथ, ताल, क्रोध, सब देखे दादा। तो बॉस की पिक्चर में आना, यहाँ तक पहुँच के यहाँ बैठना इतने नेशनल फिल्म्स डिवीज़न में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आज मौका भी मिल गया कि मैं यहाँ सामने आया करता था, पेट्रोल रोड अपना एरिया था, यहाँ पे घूमता था हम लोग, बहुत सामने खाने को भी आता था, गाय कुछ गेम में आगे। और स्कूल था बाजू में, विला थ्रीज और समथिंग। मेरी धर्मपत्नी जो मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त थी, वो यहाँ पढ़ती थी, मैं आके खड़ा रहता था। आज मौका मिला कि मैं यहाँ पर अंदर आकर, यहाँ बैठ कर एक इतना पायस मोमेंट में हिस्सा ले सकूँ। 75th बड़ी बात है आप सबको, और जितने भी हमारे मार्टर्स हैं, बस उनकी याद है, उनके परिवार को याद करता हूँ, उनको इज्जत देता हूँ। और कर्मा में काम करने का जो मौका आपने दिया, हीरो से कर्मा, राम लखन, खलनायक, याद है, बचा गया। अभी बाकी आगे करना है, किशन चंद, रामचंद, किशन चंद, वो भी कर लो। अभी तक पेट अंदर ही है, पकड़ के बैठो, और थोड़ा सा करेक्ट कर देगा तो थोड़ा भी अच्छा लगेगा सर। आप सबको जय हिंद। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, आप सब आए, आप लोग के साथ मिलकर, आपके परिवार को सबको बहुत 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 अच्छा बात करती हैं, आप करते हैं। मुझे बात करना आता नहीं है ज़्यादा, मगर इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दिलीप साहब मरहूम हमारे, जब वो बात करते थे तो हम लोगों को कान लगा के सुनना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्यों मिस होया हमारा, क्योंकि सर बात करते थे दिल से और अंदर बात करते थे, बहुत आहिस्ता करते थे। तो पहले तो लाइन याद रखो, उसके बाद में इतना बाबा, इतना बड़े आदमी के सामने खड़ा रहना, हिंदी के बंदे, फिर भी कान लगा के, कान ऐसा तेज पकड़ के बैठा रहता था। मैं बोला, और उस वक्त टेप चलता था, वो था ना फिल्म, डीजी नहीं था, नहीं वो टेप खत्म हो जाएगा, वो टेंशन के, एक टेप का इतना पैसा होता है, अगर मैं अपने वजह से अगर गलती कर दूं तो दिलीप साहब फिल्म होते थे, उसको फिल्म डब्बे में आता था, ऐसा डीजी नहीं आता था। अभी क्या बिंदास मार रहे, अभी सब डिजिटल हो गया। एफआईआर है ना, कैसे 12 गिन के चुन के 12 फोटो एक की, जितना कम हो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वो वहाँ से हम लोग आए और बस इनके गाइडेंस में मैं आया। मेरे को तो जहाँ करा हम लोग पपेट है भाई, जैसा निकालेंगे काम वैसा निकालें, सिंसियरिटी है, दिल है,
और जैसे उन्होंने कहा कि कर्मा कहाँ से शुरू हुई कहानी और बैंजो बजाने के लिए मुझे दिया, हालांकि बजाने आता नहीं, किसी को बोलना नहीं, मगर फील था, टोटल फील से काम किया, दिल से काम किया, इसलिए आप लोग के सामने खड़ा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं मेरे को. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल सर फॉर यू टू मेक मी अ हीरो एंड व्हाटएवर आई एम नाउ. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. वी आर प्राउड ऑफ यू सर. बड़ू, आप लोग सबके परिवार को मेरा बहुत बहुत प्यार. लव यू लव यू लव यू. बस प्यार मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं, टेंशन देने का नहीं. Well, let's give him a huge round of applause and let's show him our love to our, volume of the applause, and let's continue applauding him. Thank you so much. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, जैसा कि आप जानते हैं, sports and patriotism getting displayed in our Indian cinema. They've created iconic works. But one question I'd like to now ask to Rakesh Om Prakash Mehra ji, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, the way a sports person gets displayed on the screen and जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं, and when they win, do you feel that what is shown on the screen, does it somewhere have an impact on how India is performing at, let's say, all the international competitions? Like Commonwealth game, आप जैसे कि it's happening right now. India has won a lot of medals, and it's an honor, when our sports people are representing our country. But आपको sir लगता है कि is there a kind of a synergy? What is getting displayed, and that helps us, even the sports people, to get that kind of recognition and also encourage and enhance their performance currently at the international level. नमस्कार सब नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. मेरे को लगता है कि जो रियल लाइफ है वो उससे प्रेरित होकर हम लोग फिल्में बनाते हैं. तो मेरे को ऐसा एक मौका भाग मिल्खा भाग के साथ मिला था, तो उसमें कहानी में पार्टीशन की कहना चाह रहा था कि इतने साल हो गए, एक मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, 2 से 3 हो गए, और फिर भी जो हमारे अंदर की नफ़रत है वो नहीं मिटी. हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, बांट लिया, मुल्क ये कर लिया, वो कर लिया. तो इसमें मुझे मिल्खा सिंह की कहानी मिली थी. एक 12 साल का बच्चा जिसने अपनी आँखों के आगे मतलब दंगे देखे, उसमें 1947 के जो हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसमें उसके माता पिता जाते रहे, उसके भाई बहन कज़न ब्रदर, पूरा 2000 का गांव पूरा साफ हो गया. और यही नहीं, वहाँ नहीं, हर हम बोलते हैं दोनों तरफ, बट कुछ था, एक पागलपन का माहौल था. हम जानते हैं उसके बारे में, हम सब ने पढ़ा है, मैं आगे क्या बताऊँ. तो फिल्म में उसके बारे में बनाना चाह रहा था. और वो आके एक रेफ्यूजी कैंप में रहता है, उसकी वहाँ उनकी बहन मिलती है जो दिव्या जी ने पार्ट प्ले किया था. उसके मतलब खाने के लिए खाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूतों का तो सवाल ही नहीं है. फिर वो जाके इंडिया में रिकॉर्ड कैसे बनाता है, जो 60 साल तक रहता है, एशिया में डबल मेडल कैसे जीतता है, गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में जाके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वो ओलंपिक्स तक कैसे पहुँचता है. ये बात क्या है, चक्कर क्या है. और एक तो ये था, और दूसरा यही था कि मतलब देश आज़ाद तो हो गया और करोड़ों ने आज़ादी का जश्न मनाया. आज हम 75वां मना रहे हैं, पर करोड़ों ने भुगता भी था आज़ादी को. जो पार्टीशन थी, बहुत बड़ा प्राइस दिया था. ये तो वो उससे जो नफ़रत पैदा हुई थी, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा था. तो हमारी पहली स्क्रीनिंग थी, और ऐसे ही एक थिएटर में दिल्ली में वो
मिल्खा सर के साथ। उनको एक तरफ फरहान बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था, हम तीन ही थे थिएटर में। आप दिव्या जी उस टाइम आपका वो प्ले चल रहा था, आप टूर पे थी, तो ये अच्छी तरह याद है, तुम्हारी अमृता, एंड यू कुडंट जॉइन अस। एंड फिल्म चली, अब देखी मिल्खा जी ने। अब ये मैं बोल नहीं सकता कि आप उनको फिल्म कैसी लगी, आप अपने आप को देख रहे हो तो वो फीलिंग अलग है, एक दूसरे की कहानी देखते हो अलग होती है। चाहे वो फिल्म ख़त्म हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बच्चे, वो मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए जितनी नफरत थी ना, आज वो भी ख़त्म हो गई। मेरा फिल्म बनाने का मकसद ही वो था। और जब खुद उनके मुंह से सुना ऐसा, जिन्होंने इतना कुछ खोया था खुद, एक होता है कि आप ऐसे ही नारेबाजी सुन के, प्रोपेगेंडा सुन के अपने दिल में नफरत पैदा कर लेते, एक होता है आप बीती। उनकी जब आप बीती थी, वो नफरत जब प्यार में बदली, तो मुझे लगा कि ये है, सिनेमा में दम है। और हाँ, अगर वो नहीं होते तो उनसे प्रेरित होके हमने फिल्म बनाई है, तो हमेशा लाइफ आपको प्रेरित करती है, ना कि उल्टा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ आपके गाने वाने हिट हो जाते हैं तो वो चल जाते हैं IPL वगैरह में, एशियन गेम्स में, इधर उधर, तो वो ठीक है। वो पर बड़ी बात दूसरी है कि PT उषा से हम प्रेरित होंगे तो उस पर फिल्म बनेगी, मिल्खा सिंह से प्रेरित होंगे तो उन पर फिल्म बनेगी, धोनी से प्रेरित हुए तो धोनी पे फिल्म बनी। तो ऐसा हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, या खास मैं तो कर नहीं सकता, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। Thank you so much. Come on, ladies and gentlemen, a huge round of applause. You know, I would now like to go and ask Mr. Bhakar ji a question out to you. You know, the government of India is doing beautiful campaigns to popularize the sentiment of patriotism. जैसे कि अब जो campaign है, हर घर तिरंगा, I remember driving down today, and at every nook and corner आपको एक flag दिखा, and it felt, you know, it invoked that great sentiment of patriotism, and of course Amrit Mahotsav. What do you feel that the Indian cinema can do further to make the youth in particular, because they are, you know, somebody who are going to be our future leaders. How do you feel that the Indian cinema, what can they do so that the youth feels the passion and fire for the country and gets involved in nation building? Because I think that's a very important topic to discuss. Mr. Bhakarji. Yeah, I welcome all the dignitaries on the stage and all the audience. Your question is very relevant. You know, I personally feel cinema stimulates the kind of emotions, the perspectives, the skills and the understandings of the viewers. It's a very impactful medium. So the youth also gets an influence. You know, if you go by the cinema, if you talk about the country's freedom, I still remember one song, Dur Hato Ye Duniya Walo, Hindustan Hamara. I think it was in some 40s, early 40s, which played a crucial role in, you know, in motivating the people, and even arrest warrant was issued against the composers and who wrote this song. So I'm just mentioning because how it influenced the feelings of the youth, how it motivates them, how inspires them to be a part of, you know, country's freedom movement. And then cinema, as we all know, it has played a very, you know, pivotal role in breaking the negative stereotypes in the society, creating the awareness in the society, bringing equality in the society. So government is very much cognizant of this. So as I mentioned just a few minutes back, the media and entertainment sector is the most booming sector after the IT sector in India. It is growing at an annual growth of more than 25%. So government has taken a cognizance of it. They have set up a task force for, you know, providing the skilled opportunity to the youth in terms of in ABGC sector, which the country is doing very well, and it is the future of this industry. So the government is about to set up an institute like FTI to train under the PPP mode to train in this ABGC sector also. Also the 75 creative minds, it has been taken at a big
big platforms in this coming 53rd International Film Festival of Goa. The youth, the primary aim is to nurture them, to make them an icons of the cinema. So the government is taken it very seriously. We have identified 10 creative fields in which the applications will be invited, and all these youths, they will be given a kind of mentorship with the international filmmaker and with the domestic filmmaker in Goa, and then they will be given an opportunity to make a short film also, and they will be associated with the qualified technicians also, so that they learn the nuances of the filmmaking, they get attracted to this field. In addition to that, a lot of budding filmmakers are being provided the necessary funds to make the films by National Film Development Corporation under the DCDFC scheme. So on an annual basis, we are making 4 to 5 films. These young filmmakers, they are being given fund by the government. We are conducting a scriptwriters lab in which we are inviting the scripts from the budding scriptwriters, and based on that, a number of films are being made. We are taking the youth to the various international film festivals where we are pitching their works, so that we kind of providing a platform to interact with the international filmmakers and the international sales agents, buyers. So government is pretty serious about giving boost and impetus to this media and entertainment sector, and I hope India, is being promoted as a content hub in the world. It is being the preferred filming destinations. Recently, our Honorable Minister announced the incentives for the international filmmakers, and which have been become hugely popular. We are getting a lot of queries about them. Up to 30% of their qualifying expenditure, they can reimburse, and maximum up to 2 CR, and even it can go up to 2.5 CR. So all these incentives were long awaited by the international filmmakers, and they have been announced. So what I mean to say, that this is one of the priority sector on the government's field, and then they are doing everything possible to to attract the youth to this particular sector. Great. Thank you so much, Mr. Bhakarji. Let's give him a huge round of applause, because many of the things he said, makes us aware what our government of India is also doing for our upcoming filmmakers and of course the talent in our country. Divyaji, firstly, a very huge welcome. Absolutely looking beautiful. Let's give her a huge round of applause. And I must say, when you smile, it makes us smile with her. That's the kind of personality she carries. Divyaji, मैं आपसे बस एक बहुत ही महत्व सवाल पूछना चाहती हूँ. When it comes the time to choosing, a script, what is it that you look at? What aspect do you look at? And when it comes to the topic of patriotism, आप क्या देखते हो वो फिल्म में या स्क्रिप्ट में, which that lets you or pushes you to sign it up as an actor? We'd just like to hear from you on that. very good morning everyone. मेरी इवनिंग हो गई. आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. I must say, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको सुन रही थी, मैं इतना घुस गई उसमें that I just went in there. But I must say it's an honor to be with each and everyone here. Subhash ji, we've literally seen all the films that you've made, और आपको सुनना, आपकी बातें, आपके anecdotes, गाने कैसे बने, फिल्में कैसी बनी लिखी, I think ये हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हम साथ लेके जाएंगे. जगुदा, you are a part of my book, you know that, and I reiterate it again. It's something about him. आपने मुझे कहा मेरी मुस्कुराहट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जगुदा जब दिल से बोलते हैं, मैंने ऑडियंस में देखा हर कोई मुस्कुरा रहा था. So there's something so beautiful about him, which exudes so much positivity. And this wonderful man here, I think he's been so special to me, because right from his films, अक्स हो या रंग दे बसंती हो और फिर बाकी फिल्मों का अहम हिस्सा मैं रही हूँ. It's been great to, अभी मैं कुछ और सोच रही थी कि ये जब आप उनसे सवाल कर रही थी, मुझे लगा वो मानेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया और इतना खूबसूरत जवाब दिया. So it's amazing to listen to everyone here. And sir, thank you so much for throwing insights on whatever is happening, and I'm yet to listen to Shabir and to you. सबसे पहले सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम दिल से जब बात करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है, और हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है. एक्टर्स का प्रोसेस ये होता है, एंड आई एम श्योर जगुदा अग्रीज, कि मेरे लिए ज़रूर होगा कि
जो चीज़ दिल को भा जाए उसको फट से कर लेना चाहिए। और वो बड़ी फिल्म भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो वैसी फिल्म हो सकती है चाहे शायद आपने कभी की ना हो। तो अपने आप को चैलेंजेस देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और इंटरेस्टिंग करना, थोड़ी सी वो नर्वस एनर्जी रखना अपने पास, जब शीशे में देखना, आईना देखना तो एक अलग इंसान देखना। आई थिंक ये सब चीज़ें जब आपको एक रोल में मिलती हैं तो उसके लिए हाँ कर देना चाहिए। रही बात पेट्रियोटिज्म की, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनमें पेट्रियोटिज्म था, जिनमें आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारी पार्टीशन की फिल्में की, इनफैक्ट मेरी दूसरी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान वाज दैट। सो व्हाट आई फील व्हाइल डूइंग दैम, आई थिंक व्हेन यू टेक से अ बायोपिक लाइक मिल्खा जी की जब हम बात कर रहे हैं, बतौर एक्टर्स हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उन जिंदगियों को उन लम्हों में जी पा रहे हैं। हमें वो कैसा फील करते थे, वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो जितने दिन हम शूट करते हैं हम उसे फील कर पाते हैं। आई मस्ट शेयर दिस इंसिडेंट विद यू सर। एंड हम लोग भाग मिल्खा भाग की शूटिंग कर रहे थे और वो फेमस सीन जो हमारा है ब्लेज़र वाला सीन, आई एम श्योर आप सबको याद होगा। तो राकेश जी ने हमें सीन दिया और कहा कि इसका जो ये सीन तो है, अब इसका एंड तुम लोग जो मन से आएगा वो सोचना। अब इनकी जो बातें होती हैं ना वो इतनी खूबसूरत और सटली बोल जाते हैं कि आप ग्रास्प कर लें तो वो जादू हो जाता है एकदम। तो मैं सोच रही हूँ खुद कैसे कर लेंगे, मतलब व्हाट विल आई डू व्हेन आई डू इट। तो जब हमने सीन करना शुरू किया और मुझे वो ब्लेज़र पहनाया गया और वो जो सेंस ऑफ प्राइड फील हुई बतौर एक ऐसी बहन के जिसने अपना जो उसके पास जितने बिलोंगिंग्स थे अपने भाई का करियर बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, फ्यूचर बनाने में लगाए। तो जब वो हाथ डालती हैं वो ब्लेज़र के अंदर और फिर वो मुड़ के उन्हें हग करती हैं, तो जैसे मैंने उन्हें गले लगाया मैंने सोचा अब ये सीन क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इनकी बात मुझे याद आई कि फिर मन से जो आए वो कर लेना। और मुझे ये याद आया कि एक एक्टर की भी जो रोल कर रहे हो आप, उसकी भी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। तो जब इसरी कौर जब हम कर रहे थे तो हम एक सीन कर चुके थे उससे पहले जो यंगर पोर्शन था, जिसमें हमारे जो फादर का रोल कर रहे थे उन्होंने छोटे मिल्खा जी को सल्यूट किया था। तो मैंने फट से उन्हें हटाया और सल्यूट किया। आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ प्राइड दैट आई फेल्ट एज अ सिस्टर बीइंग इन दैट मोमेंट एज एन एक्टर and as an Indian. Everything just came together. I think that scene was so magical. We all were crying. None of us, neither me nor Farhan, used glycerine. Rakesh ji was crying. Vinod ji was crying. Everyone was crying. So I think that is the beauty of a role that you play, जिसे आप दिल से करते हैं और जो दिलों तक पहुंचता है. So I would just say दिल से दिल की ही राह होती है, and that is I think what everyone in different ways is trying to say here. I'd like to add a little bit. So, वो दिव्या घर में बर्तन मांज रही है राख से, राख होती थी जो अंगीठी से निकलती थी, और उसमें फरहान आते हैं सूटेड बूटेड पूरा, वो चश्मा लगा के, तो पूछते हैं कौन, मतलब पहले लुक में समझ नहीं आया। तो आर्ट डिपार्टमेंट ने राख रख दी, बर्तन रख दिए, ये सब कर दिया। मैंने एक्शन बोल दिया, सीन शुरू हो गया, वो बर्तन मांजने लगी और घिसे जा रही हैं बर्तन को, राख ऐसे उठा के, और वो सीन चल रहा है, फिर शुरू हो जाता। सीन ख़त्म हो गया, हम सब रो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही रियलिज्म में असली कोयले रख दिए थे जलते हुए राख के अंदर, और इनका हाथ पूरा जल गया था। वो कोयला को ऐसे पकड़ा, बट यार सीन ना कट जाए बीच में, अरे ये कोयला कहाँ से आ गया हाथ में, मतलब हाथ जल। उसके बाद जो हम दौड़े हैं बरनौल खरीदने के लिए, और पूरा हाथ जला हुआ है, सीन हो गया था, बट इन्होंने उफ भी नहीं की थी उसको। वो बात शायद लोगों को मालूम नहीं है। Divya ji, your dedication to the entire industry, we must appreciate and give her a huge round of applause for all the roles you've played.
and of course looking forward to a volume of work coming from you. Thank you for that. Now, which brings me to the next question. We've spoken about feelings, about patriotism. I'd like to now go to Sandeep ji. Sandeep ji, it brings me to a very important question now. How important is the role of a screenwriter in invoking patriotism through a film? Because we've heard from the actor's perspective, हमने director's perspective से अभी सुना है. अगर मैं आपके perspective से जानना चाहूँ, screenwriter's perspective, we'd like to hear from you on that. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ. एंड दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी शेयरिंग द स्टेज विद सच एन इलस्ट्रियस लॉट हियर. ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं बचपन से. एंड सुभाष जी खास करके जब मैं छोटा था स्कूल से भाग के फिल्में देखा करता था तो इनकी सारी फिल्में मैंने देखी हुई हैं. कालीचरण और कर्ज और हीरो मुझे जितनी पसंद है उतनी ही पसंद है मुझे क्रोधी और गौतम गोविंदा. तो इन्हीं से सीखा है. जग्गू दादा के साथ भी कुछ बहुत अच्छे लम्हे मैंने गुजारे हैं. जग्गू दादा को पता नहीं होगा, ये एक दिन गोवा में इनसे मुलाकात हुई. कांदुलिम के किसी होटल में रुके हुए थे और मेरे पास एक जीप हुआ करती थी 4x4 महिंद्रा की, और जग्गू दादा अपनी मर्सिडीज़ में आए हुए थे. मैं इनसे मिलता हूँ, बातचीत होती है, हम लोग गुलजार साहब के गाने गाते हैं और बाहर आते हैं, चल बिड़ू घूम के आते हैं. एंड देन जग्गूदा सीधा ये किसकी गाड़ी है 4x4 वाइट कलर. तो मैं कहा मेरी है दादा. सो ही टेल्स हिज ड्राइवर टू फॉलो. ही सिट्स इन द कार and we roam around the entire Anjuna Baga space. You won't remember, I do, because I cherish this memory. And anyway, so now let me come to the question. देखिए मुझे क्या लगता है कि फिल्म मेकिंग जो है कोलैबोरेटिव मीडियम है. शुरुआत जो है, जो स्रोत जो है वो लिखाई है, वहाँ से होती है. तो जब आप कोई इस तरह का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है. देशभक्ति की बात जब हम करते हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है. वो आपके लिए वही मायने रखता है जिस लेंस से आप उस सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं. और वो जो लेंस है वो आपको अपनी परवरिश से मिलता है. देशभक्ति की जो बात है वो कई तरीके से जाहिर की जाती है. जिंगोइज्म एक तरीका है, मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ. और एक है बहुत ही संवेदनशीलता से उस जज्बे को समझना. तो मुझे क्या लगता है देशभक्ति इज़ नॉट सो मच अबाउट डिस्प्ले बट इट इज़ इन द एक्शन, इट इज़ इन डूइंग. ये कहने की उतनी बात नहीं है जितना करने की है. तो सिपाही जो अपनी जान दे रहा होता है सरहद पे वो कर रहा होता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो करता है वो देशभक्ति होती है. सिमिलरली सिपाही भी देशभक्त है और एक किसान जो पूरी ईमानदारी से हल जोत रहा है और जो संविधान इस देश का है उस संविधान के को फॉलो करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है. और in some way if he's contributing in the growth of the economy of this nation, he's also a देशभक्त for me. तो मुझे क्या लगता है कि राइटर शुरुआत करता है और उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी जो सेंसिबिलिटीज़ है वो कागज़ पे आती है पहले. देन द डायरेक्टर का, जैसे सुभाष जी ने कहा कि वो उसकी राइटर की जो संवेदनशीलता है डायरेक्टर की संवेदनशीलता से कितना इत्तेफाक रखती है. कैन दे स्ट्राइक ए मिडल पाथ समवेयर, डू दे अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ द कोर ऑफ तो जब वो इस तरह की जब एक मिलन होने लगता है तो चीज़ें बनने लगती हैं. राइटर की जर्नी एक हद तक होती है, उसके बाद डायरेक्टर के साथ मिलके भी एक लिखाई शुरू होती है. तो वो जो सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मैच करनी बहुत ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से इस तरह से फिल्में बनती हैं. और संवेदनशीलता का ही फ़र्क है कि आप छाती ठोक कर ये कहें कि मैं देशभक्त हूँ, या आप कुछ करके दिखाएं जिससे खुद लोगों को जाहिर हो जाए कि आप देशभक्त हैं. So well put, all in the action. Let's give him a huge round of applause because hearing it from his role also is so incredibly important. I'd now like to shift and ask a question next up to Shabir ji. What was there in the story of Sher-Shah that drove you to co-produce the film, sir? We'd like to hear from you on that. First, good afternoon to everybody and all these dignitaries. Jaggu Dada especially. I'm in the industry because of him. So
he doesn't know this, but he had introduced me to Rajiv. He does things quietly, but he never talks about it. So, see, I've always believed a good movie, can change the world. Whether when you make a good film with its audio and visual implements, the impact it leaves on audiences, which no other source of media can do. And great filmmakers over here have done that in past. I'm a big fan of Rakesh ji. Subhash ji is a legend and will always remain. I'm surprised he's not making more movies, but he needs to. So when the script of Shershaah came to me, actually not the script, the story idea, a friend of mine gave it to me and I started reading about Vikram Batra. हम अभी युवा की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक अहम बात मुझे बहुत ही दिल को छू गई कि जब हम 22, 23, 24 साल के हुआ करते थे, हम लोग को ज़िंदगी की समझ ही नहीं थी और क्या करना चाहते थे हम वो भी नहीं पता था. और आज के मोस्ट ऑफ द युवाज दे आर लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू. और ये एक लड़का 24 साल में सब कुछ कर गया और अपनी जान भी दे गया. और इतनी सी छोटी ज़िंदगी में उसने सब कुछ हासिल कर लिया, परमवीर चक्र, अपना देश का नाम. तो मैं बोला ये मैसेज हमारे युवा को जाना चाहिए, कि in the small age of 24 you can achieve a lot, you don't have to live 100 years. So और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि मेरे पार्टनर्स करण और ये सब मेरे साथ जुड़ गए और हमने बेहतरीन फिल्म बनाई. और मुझे इंडियन आर्मी ने कहा कि आपकी फिल्म से बहुत इम्पैक्ट हुआ है, जो बहुत बहुत गर्व की बात है. इवन द Chief of Army wrote me a personal letter, which I will cherish for my life, and I hope I can do this kind of work in the future also, and inspire the youth and do whatever we can in a small way for the nation. So ladies and gentlemen, films continue to influence us in ways we don't realize. I'm sure you'll all agree to that. And देशभक्ति की फिल्में खूब बनानी चाहिए और हम सबको देखनी चाहिए. Well, with this, I'd like to thank each and every one of you present here for being a part of this celebration. अब हम इस auditorium को public के लिए खोलेंगे, wherein we've got films like Karma, भाग मिल्खा भाग और शेरशाह, which you can enjoy. And with this, I just request all our dignitaries to please stand up if you can for a group photograph. And let's create a momentous occasion. And of course, ladies and gentlemen, let's continue the round of applause. Such anecdotes of wisdom. We heard such pieces of stories which took us back in time, and of course, what they have in future for us. Let's give them a huge, huge round of applause, ladies and gentlemen. अरे नीचे बैठो. Anji, I know we all want to give them a standing ovation, but just for the press, if we could, thank you. And the best smiles, come on, let's give them a huge, huge round of applause. बहुत ही तालियां बजनी चाहिए. आज़ादी के 75 साल आपको बहुत बहुत मुबारक. Ladies and gentlemen, India at 75. Once again, let's say Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you so much, ladies and gentlemen. With this, we'd once again like to thank all our dignitaries. You may proceed. Thank you once again to our members of press. Please stick around whilst as our team guides you what is up next. Thank you. Thank you so मुझे चलो जय हिंद. सर लाइटिंग हाँ अरे भाई उसको साइड कर.
चलो बाबा जरा हट के अरे भाई अरे लोग मेरे को ज्यादा क्या कर रहे हैं? थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। It's a great day. It's a great day for all the Indians. So what do you want to say about it? आज भारत के 135 करोड़ लोग के चेहरों पे मुस्कुराहट है, दिल में खुशी है कि आज के दिन में भारत का हर नागरिक अपने देश प्रेम के लिए उमड़ रहा है। ये मैं देख सकता हूँ टेलीविज़न में भी, लोगों को मिलते हुए भी, और ये जेन्युइनली एक आज़ादी का अमृत महोत्सव बन गया है। जब आप अमृत महोत्सव का कहते हैं उसमें पॉजिटिविटी है। उत्सव जो महान है, जो उसको भारत की आज़ादी के 75th ईयर, और हर नागरिक को मैं देख सकता हूँ कि उसके दिल में कोई चर्चा नहीं है, डिबेट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, वो एक देश प्रेम है। हर एक के ज़बां पे गाना है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, एंड आई लव माई इंडिया। एवरीबडी सेइंग दैट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी हियर। आज जो हमें नवाजा है इंडियन म्यूज़ियम ने, हमारी फिल्म कर्मा दिखाई जा रही है सबको, और आज जो चर्चा हुई कर्मा के बारे में कि इतने सालों के बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में छाई हुई है, क्योंकि ये फिल्म दिल से लिखी थी, दिल से बनाई थी, पैसे से नहीं बनाई थी, स्टार के साथ नहीं बनाई थी, एक्टर के साथ बनाई थी। इसलिए ये फिल्म सच्ची थी, है और रहेगी। इस बात की खुशी है मुझे। जब मैं, जैसे आपने कहा और हम सब मानते हैं, हो सकता है आपके मिलने जुलने वाले भी हो, आप देखेंगे आज की तारीख में या 15 अगस्त के बहुत मेरा धर्मा तू मेरा लोगों के स्टेटस लगे होते हैं। जी हाँ। डू यू गेट इमोशनल, डू यू गेट नॉस्टैल्जिक यार, इतना प्यार, इतने वक्त के बाद भी? कोई भी फिल्मकार के लिए एक बच्चे की तरह होती है, और जब बच्चे पे आपका देश गर्वित हो, सबसे तो ज़्यादा उसकी मदर को और फादर को होती है खुशी। तो मैं उस फिल्म की माँ भी और पिता भी था, और जब इसकी तारीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि मैंने जीवन में थोड़े अंश में छोटा सा एक अच्छा काम किया है इसी। तो आई फील एज गुड एज फादर फील्स फॉर द सक्सेस ऑफ हिज सन। बच्चे के साथ उसकी शान बढ़ती है, अच्छा लगता है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की मुहिम हर घर तिरंगा, जिस तरह हम आते हैं, जब जितने भी दिन है लास्ट 2 डेज से हर जगह तिरंगा, सर कितना इमोशनल फील करते, कितना कनेक्ट फील करते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी खुशबू फैली है देश प्रेम की इस तिरंगा की वजह से, कि हम लोगों ने भी अपने विस्लिंग वुड्स में एक तिरंगा का गीत बनाया, वो आप सुनिए, यूट्यूब में है, हर घर में तिरंगा। कि आज हर संस्था, हर इंस्टीट्यूशन, हर बंदा या तो तिरंगा झंडा लिए खड़ा है, या उसका गीत लिख रहा है, या उसका गाना बना रहा है। इससे बड़ा महोत्सव तो मैंने नहीं देखा कि जब पूरा नेशन एक साथ जुड़ गया हो। आखिरी सवाल सुभाष जी, आज हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक मुहिम चलाई है, लेकिन जब मैं कर्मा की बात करता हूँ, मैं प्रदेश की बात करता हूँ, देशभक्ति से जो मोहब्बत आपकी फिल्मों के माध्यम से मिली और आज एक पर्व बनाया है, अब उसको जिस तरह सेलिब्रेट करा कि आपने तो बहुत पहले वो सब सिनेमा के माध्यम से करना। क्योंकि मैं जब बचपन में फिल्में देखता था तो जितनी भी पेट्रियोटिक फिल्म थी या गीत थे वो मुझे प्रेरित करते थे। तो पेट्रियोटिज्म जो था हमारे नेचर स्वभाव में था, हमारे घरों में भी, हमारे माँ बाप में, हमारे सब रिश्तेदारों में भी एक पेट्रियोटिज्म था।
और उस पेट्रियटिज्म की फीलिंग जो होती है आप में एक स्वभाव बनता है, हृदय में आती है। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हों या लॉयर हों या फिल्म मेकर हों, तो हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस तरह की कहानी लिखें, उस तरह की फिल्म बनाएं, उस तरह का गीत बनाएं। तो आई एम लकी, भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक फिल्म मेकर बना और फिल्म के द्वारा मैं अपने दिल से जो महसूस करता हूँ अपने देश प्रेम की बातें, वो मैं फिल्म में लिख सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर एंड हैप्पी अभिषेक भाई, थैंक यू। और चाय नहीं पिलाई। Give me a second, sorry. Okay, ma'am. Firstly, today we are celebrating 75th Independence Day. It's a great day for our India, and we are so proud of this day. Tell us how do you feel for this day? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है एंड बहुत ही गर्व की फीलिंग महसूस होती है, हमेशा होती है, लेकिन जब सब एक साथ मिलकर इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और सबके पास वो तिरंगा है, एक बड़ा खूबसूरत मुहिम है ये हर घर तिरंगा, क्योंकि आप जिस गली से निकल रहे हैं, जिस घर को देख रहे हैं, वहाँ आप तिरंगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बड़ी what do you say when you just feel it reiterates, आपको बार बार ये महसूस होता है कि it's I'm very proud to be an Indian. एंड जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हर घर तिरंगा का मुहिम चलाया, और जिस तरह 2 दिन से मैं देख रहा हूँ हर घरों में तिरंगा है, yes. सीलिंग में जा रहे, जहाँ भी जा रहे लाइटिंग है, कितनी क्या फीलिंग होती है इस चीज़ को देख के, और प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत ये एक सेलिब्रेशन किया है हमारा। और मुझे लगता है उन्होंने 14 अगस्त को भी जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इनिशिएटिव लिया है, वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हम सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितने लोगों ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। सो उसे याद करते हुए, उन लोगों को याद करते हुए जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, एक अपने आप में बड़ा सुंदर मुहिम है। और फिर हर घर तिरंगा, जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी को और उसे महसूस कर रहे हैं। हम कई बार सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उसे महसूस करना, ये सही मायने में आई थिंक सब महसूस कर रहे हैं। और आज की मैं बात करूँ, आज आप एक ऐसी जगह पे आए हैं जो सिनेमा घर के हिस्टोरिक जगह है, उसमें आके फ्लैग होस्टिंग करना कितनी प्राउड की बात थी आपके लिए? मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूज प्राइड दैट यू आर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेजिंग, और आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आप खड़े होते हैं ना तिरंगे के सामने, ये सल्यूट करते हैं, वो फीलिंग अलग है, और वो करने का मौका मिला सबके साथ यहाँ पर एक साथ। उसे बयां करना शायद मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि बहुत खुश हूँ। कई मूवी में हमने आपको देखा है, हिस्टोरिक मूवी भाग मिल्खा भाग की मैं बात करूँ, एक ऐसी मूवी थी जो आज भी कई हद तक जब मूवी आती है लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको किरदार के वो काफ़ी पसंद करते हैं एज ए सिस्टर। आप कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें आने वाले समय में आप काम करना चाहोगे, हिस्टोरिक मूवी जो? कितनी सारी है, हमारी हिस्ट्री तो इतनी बड़ी है, पार्टीशन पे ही कितनी कहानियाँ हैं, आज़ादी की कितनी कहानियाँ हैं। ऐसे तो आप एक एक पन्ना उठाएंगे, आपको बहुत सारे सुनहरे पन्ने मिलेंगे। सो ऐसा अभी जहन में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रूर करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू एज वेल। थैंक यू।